A very warm and humble welcome to all the participants. First of all, I would like to address that the inaugural session was supposed to be hosted by our Executive Director of NITM, Major General Manoj Kumar Bindal. Hopefully, he will join us in the session. We also have with us Assistant Professor Dr. Sushma Guleria from NITM Institute, Ministry of Home Affairs. I would also like to introduce Dr. Elizabeth from SIPAD, as well as Mr. Siddharth Shrestha from UNICEF, and our esteemed speaker, Nisar Ahmed and Varsha Chanda from EID. I request Dr. Elizabeth to welcome all. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you. Good morning to everybody and a warm welcome to this 1.5 hours of deliberation on social and behavioral change communication. We all know that social and behavioral changes are taking place every day in our lives. And nowadays in this COVID situation, it's getting more difficult and we are compelled to adapt ourselves every day. And that's why I have requested people from all backgrounds to join this program. Some are homemakers, some are students, teachers, professors, professionals in various private sectors. We have people from the government. We have mothers associations. So n number of people from various government departments of the state government of Tripura also, and we also have people who have joined us from various states and who are in the administrative training institutes, in SIRDs. They're all working there as faculty and in various capacities. So I welcome all of you to this program. And as I said, this is an issue, social and behavioral issue, which we are being forced to adapt to, especially in this COVID situation. It's so difficult for many people to adapt, but we have no choice. We have to, in order to carry on with our lives, we have to go by what we are compelled to do right now. So I think during the discussions which we'll be having in the next 1 hour, we'll all benefit a lot. And many of you may have many questions to ask, because these are the new normal situations which we are adapting to, and we have a lot of things to learn and other. So I hope that all of you will be with us till the end. Thank you all very much for being with us here. I hand over the time to Aradhna. We request Siddharth sir to please kindly address all the participants before we formally start. Siddharth sir. Okay, very good morning to all the participants, our partners and dignitaries present. I think I want to start by saying Eid Mubarak to all those who celebrate this festival, and actually appreciate those who are here, who are even attending the festival, attending this event in spite of today being a holiday. I think the commitment is there for all to see. Thanks to NIDM and SIPAD, right, State Institute of Public Administration and Rural Development, Agartala, for organizing this webinar and providing the opportunity to discuss this very, very important topic on social and behavior change communication. So I hope everybody would be able to say, would also be able to start becoming champions of SBCC, or social and behavior change communication experts. Special thanks, of course, to our colleague who is not here, who will be joining us soon, Major General Manoj Kumar Bindal, ED. I see Dr. Elizabeth here from SIPAD, Dr. Sushma Guleria of NIDM, and the entire team from both the organizations.
This is the second webinar in the series, where the first one was with the Rajasthan State Institute of Public Administration on 24th July, which I believe was a great success with active engagement of all participants. I'm sure this is going to be the same too. One of the most important in this current COVID times, like what Dr. Elizabeth was saying, is about behavior change, is social and behavior change communication. But in COVID, we call it RCCE. Again, just an acronym, but what does this mean? This basically means risk communication and community engagement. So basically, SBCC and RCC both have the same principle. It's about changing the behaviors, the mindsets of the population towards positive ones, following a system-based approach, right? So what we are seeing, everybody is calling it the new normal. It's new normal, but if you look at behaviors in the new normal, it is something which you have been doing for some time. For instance, hand washing with soap, right, has been there for ages. But that's, the hand washing with behavior, with soap behavior is also part of the new normal. So these are all part of the overall risk communication and community engagement intervention, which is being led by the Ministry of Health, Union Ministry of Health here in Delhi, and I'm sure even in Tripura, the State Department of Health is trying to promote all these behaviors. UNICEF, as part of the overall development partner support, we have been doing this, and in fact co-leading this with the Ministry of Health. Now, coming back to this important webinar of today, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction and other organizations have actually hailed the efforts of the government and volunteers, particularly volunteers in handling, the devastating cyclone Fani. You must have heard about Fani, right? Which happened in Odisha in 2019. Surprisingly, the death toll was only limited to 64. But considering the power of the cyclone, it is remarkable to see how it was managed so effectively to limit the number of casualties. If you looked at it just a decade ago, about 10 years ago, the 1999 Odisha super cyclone of the same powerful severity and intensity killed almost 10,000 people. So now 64 versus 10,000. We might be wondering why. I think one of the biggest things, one of the most critical aspects for this successful response was what I call the powerful phrase of effective, timely, and consistent communication, ETC communication. Effective, timely, and consistent communication, which I hope will also be in the journey today to do this. Why was it so effective? Because there was a mix of approaches being used. Over 2 million text messages were sent to locals in the local language, with clarity, keeping them updated of the situation. From a public relations point of view, there was regular press briefings. There was also clear do's and don'ts with a consistent approach going across the board from Odisha, from the state level even to the community level. So this actually helped, all of this helped in the record evacuation of 1.2 million people being evacuated to safe sites, and also controlled the post-disaster epidemics. What happens with cyclones and all of this. One of the biggest things which come up, which is closely attached, is a cholera outbreak. So all of these were really controlled. So communication basically was across within the administrators at one group, and also together parallelly and simultaneously with influential community groups like the civil society organizations, CSOs, and also at the individual level. So basically, in summary, the involvement of all stakeholders right from top to bottom really helped, including, I would say, community radio is very, very critical in emergencies. And I'm sure I'm not particularly familiar, but I am pretty positive that there are a few community radios in Tripura which you have been using quite effectively for the COVID response. So what about the partnership? UNICEF's partnership with NIDM will definitely support in strengthening the communication, planning, implementation, and monitoring capacities of those involved in the preparedness,
response and recovery. You all know about preparedness, response, and recovery because I'm sure all of you are involved in some DRR efforts in one way or the other. We have been engaging with NITM for the past year or so in reviewing the current training modules for emergencies, understanding the role of communication through case studies such as the Gujarat earthquake, the Kerala and Bihar floods. And it's again a learning in process. As we know, there are huge damages in Bihar and also in Assam due to the flood. So we also learn as we go and consultation with other experts and stakeholders to develop this module. We believe this module will actually help also in the current, current responses for floods, which we have been using in Assam and Bihar. Special thanks again to Dr. Sushma, who's actually ensured this module has come to, this draft module has come to fruition. And to my colleague who's here today, Shalini Prasad, who's our UNICEF C4D specialist. And also special thanks to our partners, Nisar and Harsha, from EID, Envision Institute for Development, for making sure all of this is all packaged well for you all to comment and bringing it back to reality and to practical implementation. We have received great support from the ED, like I told you, who has provided us with useful insights on the module and its integration within the training curriculum of NIDM. This module is in two parts. One is a 60-minute module providing the basics of social and behavior change communication, and a 30-minute application-oriented mode, a more practical-oriented approach on the various and common types of disasters like floods and earthquakes, like I said. Today we'll be discussing the 60-minute module with you. And it's not just a webinar, it's more than a webinar where we really, really need your support. It's a sharing and feedback session. So we will request for your, concrete, concise, and critical feedback on the content of this base module in the end. Because if it does not make sense to you, it's not going to make sense to others, right? So it needs to be as practical as possible to make sure this happens. So let's try to make this interactive. Varsha is there, Nisar is there to ensure that it's not just a one-way communication, but a two-way communication. And we are talking about communication this entire 1.5 hours in the morning. So we would like to shape also the 30-minute module based on your feedback. And finally, your experience will benefit us tremendously to scope out the module on, for these various disasters. And the SPCC principles you use in this module can also be applied to the current COVID-19 response you are doing in Tripura. Thanks in advance for participating, and we really, really look forward to your review and insights. Have a great webinar, and dhanyavad. Namaste. Thank you. Thank you so much, sir. I request Varsha Chadda from EID to kindly continue with the presentation. Thank you. Thank you very much. Aradhna, can I present the PPT? Yes, ma'am. Ma'am, you can share your screen. Right. Thank you. Will you let me know if you can see it? Yes, ma'am. Ma'am, Great. is it full screen? Yes. Okay. Yes, ma'am. Can you see it full screen? Yes, ma'am. It's full screen. Okay, great. Thank you very much, Aradhna. Thank you very much, Sid. That was a very, very interesting introduction that you have given इस मॉड्यूल के लिए. सभी लोगों को बहुत नमस्कार हमारी तरफ से. तो आज जो इस मॉड्यूल पे हम बात कर रहे हैं सोशल और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए. डॉक्टर एलिजाबेथ का मैंने बात सुन रही थी और कहीं मुझे लगा कि हम क्योंकि कोविड की दुनिया में आज रह रहे हैं तो इसीलिए कोविड के ऊपर बहुत फोकस है. हम कोविड की तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम बात दूसरे डिजास्टर्स की भी करेंगे, क्योंकि ये हकीकत है कि डिजास्टर्स आज के दिन में हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया है. और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से हम हर साल कोई ना कोई हमारे पास फ्लड आता है या साइक्लोन आता है या अर्थक्वेक्स हम इतना सुन रहे हैं सबके बारे में,
तो इनके लिए कैसे तैयारी करें, क्या प्लानिंग करें, कैसे लोगों तक इन बातों को समझाएं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो 1 घंटे का मॉड्यूल आपका होगा, उसकी चीजें, जो बातें हम करेंगे वो होंगी एक कि सामाजिक और व्यवहार अगर हमें परिवर्तन करना है तो उस व्यवहार परिवर्तन के लिए क्या क्या हमारी चीजें होनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए हमारे, जिनके ऊपर हम काम करेंगे, जो हमारे कम्युनिकेशन प्लानिंग में काम आएंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि किस तरह से एक मॉडल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका नाम हमारा है सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल। तो ये SEM या सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल जो है वो कैसे हमें बताएगा कि किन लोगों के साथ बात करनी है और क्या बात करनी है। उसके अलावा इन लोगों तक अगर हमें पहुंचना है तो किन माध्यमों की हमें बात करनी होगी, किन माध्यमों की तैयारी करनी होगी, क्या क्या अलग अलग माध्यम है और कौन सा माध्यम किस ऑडियंस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। और सबसे आखिर में जिस चीज पे हम बात करेंगे वो होगा कि काम तो हम करते हैं, लेकिन वो काम हमारा कितना सक्सेसफुल रहा है, कितना ठीक रहा है, उसको मॉनिटरिंग कैसे करें और उसकी प्लानिंग उस मॉनिटरिंग की कैसे करें, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आज हम 5 हमारे सत्र होंगे, तो इन सत्रों में ये सारी बातें हम करेंगे। तो सेशन प्लान, जो 1 घंटे का सेशन प्लान हमारा है, 10 मिनट का आप देख रहे हैं कि इस मॉड्यूल के बारे में हम बताएंगे आपको, और हमारा दूसरा 20 मिनट जाएगा जो कॉन्सेप्ट हमारे हैं सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन SPCC के, तो उन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाना। तीसरा हमारा सेशन होगा 10 मिनट का, वो होगा कि किस तरह के चैनल्स हमें इस्तेमाल करने हैं, कौन से माध्यम इस्तेमाल करने हैं कम्युनिकेशन के लिए। और जो चौथा सेशन 20 मिनट का होगा वो होगा कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे होता है और इसकी प्लानिंग कैसे होती है। तो आइए अभी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोविड का समय है। तो कोविड की ये कहानी है जो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। ये जो फोटो है ये लॉस एंजलिस टाइम्स में आया था। तो US के इस पेपर ने बात कही थी धारावी की, जो एक झुग्गी झोपड़ी है मुंबई में, और आप सभी लोगों ने धारावी के बारे में सुना था, क्योंकि जब कोविड यहाँ पर शुरू हुआ था तो कोविड की शुरुआत में हमें सभी लोगों का यही डर सबसे पहले हमारे मन में था कि अगर ये मुंबई पहुंचता है और मुंबई में अगर ये धारावी पहुंचता है तो कितने हमारे नंबर्स जो है वो 1 महीने में, हमने कहा हम अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। कल की ही खबर अगर आप देखो तो कल टोटल फिगर जो मुंबई में इन्फेक्टेड हुआ है वो है 1208, और जो धारावी में नए इन्फेक्शंस है वो सिर्फ 6 है। तो क्या चीजें की धारावी ने जिसकी वजह से ये वो कर पाए कि इतना लो उनका कोविड का इन्फेक्शन का नंबर वो रख पाए। तो एक हम यहाँ पर बात देख लेते हैं कि क्या क्या धारावी ने किया। सबसे पहला केस 1 अप्रैल को यहाँ पर हुआ था, और 5 जोन्स तभी 1 अप्रैल को हेल्थ डिपार्टमेंट ने जूम इन किए कि ये 5 जोन्स है जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा है इस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का। तो ये हाई रिस्क जोन्स जो है इसमें करीब करीब 2500 हेल्थ वर्कर्स वहां पर उन्होंने तुरंत लगा दिए जो काम करेंगे। दूसरी बात उन्होंने जो की वो है कि जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स, हालांकि पूरी दूसरी जगहों पर प्राइवेट डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक्स बंद कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर BMC ने, जो मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर्स को इजाजत दी थी कि वो जाकर वहां पर काम करे। क्यों ये प्राइवेट डॉक्टर्स? क्योंकि इन प्राइवेट डॉक्टर्स का वहां पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो स्लम्स में रहते हैं उन लोगों को। और नेचुरली हम अगर कुछ बीमारी होती है तो सबसे पहले हम अपने डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, दूसरे डॉक्टर्स के पास नहीं। तो इन डॉक्टर्स ने जो किया वो है कि वो खुद जाकर चेकिंग कर रहे थे डोर टू डोर। और ये जो किरण दिग्वाकर जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उनका ये कहना था कि लोग हमारे पीछे भागने से पहले हम वायरस के पीछे भाग रहे थे ताकि हम उसको पकड़ ले टाइम पे। और एक बात जो हमने यहाँ पर की वो है कि हमने डॉक्टर अनिल पंचनेकर, जो वहाँ के लोकल फिजिशियंस एसोसिएशन के हेड है, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही कि कोरोना पॉजिटिव होना, कोविड पॉजिटिव होना कोई सजा नहीं है, कोई क्राइम नहीं है।
तो इसके वजह से क्या होता है, आज के दिन में अगर हम देखें तो स्टिग्मा इतना बाकी के स्टेट्स में, बाकी के जगहों पर इतना ज्यादा स्टिग्मा है कि हम आसानी से जा नहीं सकते हैं और हमें डर लगता है कि हम कैसे किसी को जाके कहें कि हम कोविड पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि डॉक्टर्स खुद कह रहे थे लोगों को कि आ जाइए और चेकिंग कर लीजिए। और ये डॉक्टर जब कह रहे थे, डॉक्टर अनिल की खुद की बात है, वो 60 इयर्स के हैं और आप सभी लोगों को पता है कि हाई रिस्क ग्रुप्स कौन से हैं। तो इस हाई रिस्क ग्रुप में ये डॉक्टर आ रहे थे क्योंकि खुद उनकी उम्र ज्यादा थी और दूसरी बात उनके परिवार में खुद 2-3 लोग थे जो ज्यादा बीमार थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर ये एक वॉर है और इस वॉर में अगर सोल्जर्स जो डॉक्टर्स है वो घर पे बैठे रहेंगे तो कैसे ये जंग जीतेंगे। इसीलिए उन्होंने और बाकी के सारे डॉक्टर्स ने जाकर वहां पर काम करना शुरू किया था। सब लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ और मुश्किलें हैं धारावी में। आप सभी लोगों को पता है कि वहां पर जगह नहीं है लोगों को क्वारंटाइन करने की, आइसोलेशन करने की। तो ये क्वारंटाइन आइसोलेशन जो हुआ था वो MCGM ने पूरी स्कूल्स को, होटल्स को, बारात घर को बंद करके यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर्स खोल लिए थे जहाँ पर रेगुलर चेकअप हो रहा था, फ्री हेल्थ केयर हो रही थी और लोगों को खाना पानी जो है वो भी मिल रहा था। तो घर पे आप आइसोलेशन के लिए आपको जगह नहीं है तो आप जाकर यहाँ पर रह सकते थे और आइसोलेशन पूरा आपका हो सकता था। तो करीब करीब 10,000 लोगों ने इस फैसिलिटी को इस्तेमाल किया। 20 दिन में 1 अप्रैल को आपका पहला केस आया था। 20 अप्रैल को जो क्लिनिक्स बंद हुए थे वो दोबारा खुल गए और उन क्लिनिक्स में अभी 350 डॉक्टर्स जो बैठे थे उन्होंने घर घर जाना बंद करके अपने क्लिनिक्स खोले थे और वहां पर जाकर लोग क्लिनिक में ही अगर उनको लगता है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं या उनको इन्फेक्शन है तो वो जाकर अपनी जांच वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरह से लोगों का जो हमने विश्वास जीत लिया था, उस विश्वास से आज के दिन में अगर आप देखें तो धारावी में सिर्फ 80 पॉजिटिव केसेस है, जहां पर इंडिया में इतने सारे केसेस पॉजिटिव है और इवन इन मुंबई में भी लगभग 5,000 पॉजिटिव केसेस अभी भी है। लेकिन अगर आप धारावी की बात देखें तो धारावी में सिर्फ 80 पॉजिटिव केसेस। तो ये जो चीज हुई है और ये जो जादू हुआ है धारावी में जो कोविड को अपने रोक पा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ। आप सभी लोगों को पता है कि ये जो कोविड की महामारी है, ये खुद महामारी हमारे लिए डिजास्टर से कम नहीं है और इसको भी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी माना जाता है, डिजास्टर माना जाता है। तो इसके लिए एक मॉडल जो हमारा है उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो इस मॉडल का बेसिस जो है वो है कि आप किस तरह से इस फाउंडेशन को आप ले करें ताकि एक व्यक्ति की अगर आपको व्यवहार में अगर परिवर्तन लाना है, उसका बिहेवियर चेंज करना है, तो उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपको क्या क्या करना है। और ये मॉडल हमें बताता है कि बिहेवियर चेंज में किस किस की भूमिका है और कौन कौन आपके काम आएगा। इस मॉडल का पहला लेवल जो है वो इंडिविजुअल है जो अपना बिहेवियर चेंज करना चाहता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो एक बिहेवियर है हमारा कोविड को ही लेकर, अगर हम आगे चले तो हाथ धोना है या अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग करना है। तो ये बिहेवियर अगर हमें इंडिविजुअल में चाहिए तो हमारे अगल बगल में क्या हमारे लोग जो है वो मदद कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा लेवल है इंटरपर्सनल लेवल, या हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो हमारे पड़ोसी है रहने के लिए, तो वो सब हमारे सेकंड लेवल में आते हैं जिन्हें हमें इंटरपर्सनल लेवल कहते हैं। तो धारावी के केस में अगर आप देखें तो इंडिविजुअल तो था ही, लेकिन साथ साथ जो उसी घर में उसी मकान में 10 बाय 10 की खुली में रहने वाले बाकी के लोग जो है वो आपके इंटरपर्सनल लेवल में आते हैं। इस कम्युनिटी थर्ड लेवल जो है, इस कम्युनिटी के जो डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर इस कम्युनिटी का भरोसा था, वो आपके कम्युनिटी लेवल पे आते हैं। वो रिलेशनशिप दिखाती है कम्युनिटी के और इंडिविजुअल के बीच में। और आपका चौथा लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आपने देखा BMC या MCGM ने जो काम किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो काम किया, जो रूम्स लोगों के लिए बना लिए आइसोलेशन के लिए, तो उन्होंने भी या वॉशिंग स्टेशंस लगाए हाथ धोने के लिए, तो उनका चौथा लेवल आपका आता है। और पांचवा लेवल जो हमारा है वो है पॉलिसी, जिन्होंने अलाउ किया कि प्राइवेट डॉक्टर्स जो है वो अपने क्लिनिक्स खोले और
कम्युनिटी में जाकर वो काम करे। तो ये जब तक नहीं होता है, जब तक पांचों लेवल पे काम नहीं होता है, तब तक किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज करना मुश्किल होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग अकेले अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आसान होता है ज़्यादा वो है कि अगर सभी साथ मिलके काम करें, और इसीलिए हम इसको सोशो इकोलॉजिकल मॉडल कहते हैं कि आपके अगल बगल में जो परिस्थिति है क्या वो अनुकूल है आपके बिहेवियर चेंज करने के लिए, मदद करने के लिए। और हर लेवल पे आपको बातचीत करनी है। तो यहाँ पर बातचीत करने के अलग अलग माध्यम जो है, पहला वाला है आईपीसी, आईईसी या बीसीसी। इसके बारे में और बातचीत करेंगे आपके साथ प्रोफेसर निसार जब वो आएंगे, लेकिन हम बस अभी आपको बता रहे हैं कि हर एक लेवल पे आपको अलग अलग बातचीत करनी होगी, अलग अलग तरीके की आपको बातचीत करनी होगी। तो इंटरपर्सनल लेवल पे आईसी, आईपीसी और बीसीसी। आप कम्युनिटी लेवल पे जब जाएंगे तब आपको कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करना होगा। जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाएंगे तो लोकल एडवोकेसी करनी होगी आपको, और वहां पर भी लोगों को आपको मोबिलाइज करना होगा। और जब आप पॉलिसी लेवल पे जाएंगे तो वहां पर एडवोकेसी कम्युनिकेशन आपका होता है। तो इन कम्युनिकेशन को करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म्स क्या है, किस तरह से आप इन कम्युनिकेशन को करेंगे, उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी निसार जी को सेशन आगे लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो सामने हमारे सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल पड़ा है और हमारे जो साथी यहाँ बैठे हैं, जरा देखिए कि डॉक्टर एलिजाबेथ ने कितने सोच समझ के सब लोगों को यहाँ बुलाया है। किसी भी तरह के डिजास्टर के लिए हम इंडिविजुअल को कुछ मैसेज देना चाहते हैं और उनमें बिहेवियर चेंज चाहते हैं। अब यहाँ हमारे साथ होम मेकर्स बैठे हैं, मदर्स एसोसिएशंस बैठे हैं। आप अगर देखें तो किसी भी बिहेवियर चेंज के लिए इंटरपर्सनल लेवल वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसर है। तो बच्चा कहीं इंडिविजुअल बाहर से घूमकर वापस आया और अगर उसने हाथ नहीं धोए इमीडिएटली तो उसकी मदर उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है घर पर कि अच्छा यू हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, सो प्लीज वॉश योर हैंड्स विद सोप फॉर 40 सेकेंड्स। सो ये एक यहाँ मदर्स हमारे बैठे हैं। इसी तरह कम्युनिटी से हमारे यहाँ बहुत सारे साथी बैठे हैं, मदर्स एसोसिएशंस बैठे हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथी बैठे हैं, हेल्थ के साथी बैठे हैं, टीचर्स यहाँ हमारे साथ हैं, और वो टीचर्स भी किसी ना किसी तरह इस इंडिविजुअल को जिसके कांटेक्ट में वो टीचर आते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और पॉलिसी भी अवेलेबल है। तो यहाँ जो हम सब लोग हैं मिलकर, वो कहीं ना कहीं किसी भी डिजास्टर रिलेटेड बिहेवियर के लिए चेंज कराने में हम सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास डिपार्टमेंट के हिसाब से, डिपार्टमेंट वाइज अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हेल्थ के हमारे जो साथी हैं, आपको मालूम है कि वो एक विलेज लेवल पर एक विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, कहीं कहीं इसको विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन डे भी बोला जाता है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, रूटीन इम्यूनिटी डे, ये एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, लेकिन वहीं पर हम अपने डिजास्टर रिलेटेड रिस्क कम्युनिकेशन रिलेटेड मैसेजिंग भी वहां पर दी जा सकती है। विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की हम बात करें, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें एक ICDS जिसके आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं, जिस पर टेक होम राशन का दिन होता है, पोषण अभियान की एक्टिविटीज हो रही हैं। इसी तरह एजुकेशन का अगर हम देखें तो हमारे स्कूल लेवल पर स्टूडेंट पार्लियामेंट्स हैं, और हमारे एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें कम्युनिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनके थ्रू भी हम अपना जो कम्युनिकेशन आगे पहुंचा सकते हैं। PRI, ग्राम सभा, यूथ अफेयर्स की हम बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वॉलंटियर्स स्कीम्स दैट दे हैव, नेशनल यूथ वॉलंटियर्स, NSS, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, तो ये सब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। रेड क्रॉस के भी अपने वॉलंटियर्स हैं। फिर लाइवलीहुड को लेकर अलग अलग जगह पर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हमारे पास, चाहे वो नाबार्ड के द्वारा बनाए गए हों, चाहे वो स्टेट लाइवलीहुड मिशन ने बना रखे होंगे, और उन SHGs के फेडरेशंस हैं।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेजिंग के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है। और लोकल ग्रुप्स हैं, ट्रेड एसोसिएशन हैं, अलायंस क्लब, रोटरी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अर्बन एरियाज में, तो ये सब हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं SBCC और RCCE के लिए। अब हम जो सोशल इकोलॉजी जिसका हम डिस्कशन कर रही थी वर्षा कुछ देर पहले, इकोलॉजी हमारा परिवेश हमारे आसपास, सोशल इकोलॉजीज की बात क्यों करते हैं कि देखिए हम जो कंडीशनड हैं हम सिर्फ दो काम करने के लिए, या तो हम किसी भी डिजास्टर से फाइट करेंगे, उसको फेस करेंगे, और या फ्लाइट करेंगे, उससे हम दूर भागेंगे। ये दो ही तरीके होते हैं। तो हम कब फाइट करते हैं और कब फ्लाइट करते हैं कि होता क्या है कि अगर कोई भी चेंज बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है जो आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो हम उसके साथ एडजस्ट करने लग जाते हैं, हम उससे दूर नहीं भागते, फ्लाइट नहीं करते। एग्जाम्पल्स इसकी कुछ हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज को आप ले लीजिए, वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है तो इसलिए बहुत ज्यादा हम उसका नोटिस नहीं लेते हैं। केरला में जो फ्लड्स आए, केरला में फ्लड्स जिस एरिया में आए वो मीन सी लेवल से बहुत नीचे का एरिया है, लो लाइंग एरिया है, तो वहां फ्लड बरसात का पानी बहकर सी में नहीं जा सकता, बिकॉज सी इज हायर देन दैट एरिया। तो ये इशू लोगों को मालूम होना चाहिए था, बट स्टिल उस पर आप देखें कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं एक छोटी सी एक कहानी आपके सामने लेकर आऊंगा यहाँ पर, और वो कहानी केवल इतनी सी है कि अगर एक बर्तन में लेकर हम पानी को बहुत बॉयल करें, बिल्कुल बॉइलिंग कितने पर होता है, 100 डिग्रीज पर, 100 डिग्री तक उसको हीट कर दिया, और फिर उसमें अगर हम एक फ्रॉग को डालेंगे तो वो फ्रॉग क्या करेगा? जरा अपना माइक ऑन कर लीजिए और मुझे बताइए कि फ्रॉग क्या करेगा। सर, जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फ्रॉग उछलना शुरू कर देगा, बाहर निकलना शुरू कर देगा। हाँ, और हमने उसको डाला ही ऑलरेडी 100 डिग्री पर डाला है, तो वो क्या करेगा? फौरन उछलेगा, है ना? हाँ जी, राइट सर। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? अरुण सर, अरुण अमेटा। अरुण, थैंक यू वेरी मच अरुण। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? सर, मैं नीति आयोग से हूँ। ओह वेरी गुड। नीति आयोग से दिल्ली में ही हैं? नहीं सर, उत्तर प्रदेश डिप्लॉयमेंट है मेरा। ओके, थैंक यू अरुण। प्लेजर सर। अच्छा, अब हम जो एक और चीज ये सोचें कि अरुण ने साथ में हमें एक चीज और बताई कि अगर हम उसको पहले ठंडे पानी में डालें और फिर धीमे धीमे 1 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर हो, तो क्या होगा? 1 घंटे में 1 डिग्री बढ़े, फिर दूसरे घंटे में 1 और डिग्री बढ़ जाए, तब क्या होगा फ्रॉग के साथ? में एक्लामेटाइजेशन आएगा। एक्लामेटेशन आएगा, ग्रेट। और जब वो आहिस्ता आहिस्ता 100 डिग्री पर पहुंचेगा, तब क्या फ्रॉग इस काबिल रह पाएगा कि वो उसमें से जंप कर पाए? तो होगा क्या कि ग्रेजुअल अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो फ्रॉग इस काबिल नहीं हो पाएगा कि उसमें से जंप कर पाए। तो यही हमारी पैरेबल ऑफ बॉइलिंग फ्रॉग है। और इसको अब हम देखते हैं कि डिजास्टर के केसेस में होता क्या है। तो जब ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं तो हम चाहे वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो, लेकिन फिर भी अगर ग्रेजुअल है तो लोग उसको टॉलरेट करते रहते हैं जब तक, और वो उससे फाइट करते रहते हैं, लेकिन फ्लाइट की कैपेबिलिटी उनमें नहीं बचती है। तो हमारा एज DRR कम्युनिकेटर्स, डिजास्टर रिस्क कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम एक इस तरह के कैटलिस्ट बने कि जो लोगों को ये समझाएं कि भाई यू शुड बी सेंसिटिव रादर देन बीइंग लेफ्ट मोशनलेस, कि आपको जब शुरू में ही वो बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तभी उनके साथ सेंसिटिव होना चाहिए, बजाय इसके कि वो अंत वो आ जाए कि जब हम कुछ करने के काबिल ही ना रह जाएं। तो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग कैपेसिटीज एंड इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स। तो जो स्लो वार्निंग सिग्नल्स हैं उनके आसपास, उनको हम ठीक से कैप्चर कर पाएं, ये कैपेसिटी हमको बिल्ड करनी है अपनी कम्युनिकेशन द्वारा। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कुछ देर पहले सिड ने बड़े अच्छे से इस पर बात की ही थी कि हमारा एक प्री डिजास्टर फेज होता है जिसपे हम तैयारी करते हैं, प्रिपेयर्डनेस, लोगों को वार्न करना, उनको बताना कि भाई ये ऐसा हो सकता है, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और रिस्क रिडक्शन के लिए। लेकिन जब डिजास्टर अगर आ जाए, और जब आ जाता है, तब इमीडिएटली हमारा एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, यानी डिजास्टर में
ये हमें यहाँ पर रेस्पॉन्स करना होगा। और डिजास्टर के बाद रेजिलियंस, लोगों को आगे के लिए फिर से उनमें एक रेजिलियंस बनाना, एक क्या कहें कि एक ऐसी मजबूती बनाना कि अगली बार जब ऐसा कुछ हो जाए तो उसको वो लोग हैंडल कर पाए। अब जरा ये देखें हम कि अभी हमने कुछ देर पहले डिजास्टर के 4 फेजेस की बात की और फ्लाइट और फाइट की बात की। हमारा एक बिहेवियर क्या है कि प्रिकॉशन, लोग प्रिकॉशन करें, वार्निंग्स उनको टाइमली पहुंचे, एडवोकेसी हो, लोगों को इंफॉर्मेशन मिले, लोगों को मोबिलाइज किया जाए, उनको जो फियर है कि फियर कितने लेवल तक का है, उस फियर से उनको अवगत कराया जाए, उनको उससे फेमिलियराइज कराया जाए। तो ये काम हम कम्युनिकेशन के द्वारा कब कब करेंगे? प्रिपरेशन फेज पे करेंगे, मिटिगेशन फेज पे करेंगे। लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स का फेज है वहां ये काम नहीं होगा, क्योंकि वहां इमीडिएट रिस्पॉन्स ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके बाद फिर से रेजिलियंस फेज पे करेंगे। तो 3 फेज पे ये काम होगा। फियर मैनेजमेंट का अगर काम कि लोगों को इन्फॉर्म करना और उनके फियर को मैनेज करना, ये मिटिगेशन फेज पे होगा, और ये रेस्पॉन्स फेज पे भी होगा और रेजिलियंस फेज पे भी होगा यही काम। और फाइनली क्राइसिस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन लोगों को देना कि रियल रिस्क क्या हैं, अथॉरिटीज क्या करने जा रही हैं, और उनको स्वयं, उनको खुद क्या करना चाहिए, वो चारों ही फेज पर होगा, प्रिपरेशन, मिटिगेशन, रेस्पॉन्स और रेजिलियंस पे। एक छोटे सी आप कहेंगे कि मैं कभी मेंढक की बात करता हूं और अब सामने स्क्रीन पर हाथी दिख रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए हाथी की बात करेंगे और उस हाथी को चलाने वाले को हम माहौत, बंगाली में क्या कहते हैं माहौत को? द वन हु रन्स द एलिफेंट, माहौत ही कहते हैं, कहते हैं। ओके, ओके। तो एलिफेंट, माहौत और एक रास्ता, ये 3 चीजें हैं। अब ये एलिफेंट है, ये हमारा एक प्रकार का सिंबल है लोगों के एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स के लिए, लोगों के सोशल नॉर्म्स के लिए, जिसके चलते लोग उस प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे भी वो कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल, एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है कि मैं अगर अपने मोटरसाइकिल पर जाऊंगा तो ठीक है, मैं गिरूंगा नहीं और मेरे सर पे चोट नहीं आएगी। ये एक प्रकार का बिहेवियर है और इसलिए मैं हेलमेट नहीं पहनता। तो ये एक तरह का एलिफेंट है। महावत क्या है? डीआरआर कम्युनिकेशन मैनेजर्स, आप सब लोग जो यहां बैठे हैं, जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एटीट्यूड्स को, बिहेवियर्स को, और एलिफेंट को गाइड करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि मैं जब अपने 2 व्हीलर पर राइड करूं तो मैं हेलमेट पहनूं, ये आप मुझे बताना चाहते हैं। तो मैं जो अभी हेलमेट को यूज नहीं करता, आप चाहते हैं कि मैं हेलमेट को यूज करूं, सो आप महावत हैं। और पाथ क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कुड मेक मूवमेंट पॉसिबल, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? अभी ठीक है, हेलमेट शायद अफोर्डेबल है, मैं खरीद सकता हूं। इमेजिन कीजिए कि अगर हेलमेट की कॉस्ट जो है वो मोटरसाइकिल की कॉस्ट के बराबर हो जाए, तो शायद मेरे लिए हेलमेट को खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 3 चीजें हैं मिलकर जो किसी भी तरह से बिहेवियर को लोगों के बदलने में आपको हेल्प करती हैं। तो हम इसको यूज करके किस तरह से एलिफेंट को गाइड कर सकते हैं, एसबीसीसी को और आरसीसीई को यूज करके। एक एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक जगह पर एक आदमी है, एलिफेंट के आगे आप देखें सांभा। सांभा ने ये सुना कि भाई वो एक साइक्लोन आने वाला है कोस्ट पे 2 वीक पहले। सो सांभा ने 2 हफ्ते पहले सुना था कि एक साइक्लोन आने वाला है। उसने अपने फैमिली से जाकर बात की, पर उन्होंने कहा जी हाँ, इससे पिछली बार भी साइक्लोन आने की बात थी, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी थी, तो और कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो इनका जो एलिफेंट क्या है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस बार भी ठीक है, वार्निंग आई है, लेकिन शायद कुछ होगा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। फियर लेवल बहुत कम है। महाउत क्या है? लोकल आपदा ऑफिसर, लोकल आपदा ऑफिसर जिसने रेडियो पर सुना है अब लेटेस्ट साइक्लोन की वार्निंग के बारे में। और पाथ क्या है? पुराना के सांभा और उसके फैमिली का एक्सपीरियंस है 2 बार का कि वार्निंग आई और वार्निंग आने के बाद उनका जो असल में साइक्लोन आया नहीं, तो उनका जो परसेप्शन है खतरे का
उनका खतरे का परसेप्शन बहुत कम हो गया है। तो इसलिए वो इस बार वाली भी जो वार्निंग है, तीसरी वार्निंग जो अब आई है, उसको भी शायद वो बहुत सीरियसली नहीं लेंगे। और केवल सांभा का ही ये एक्सपीरियंस नहीं है और उसकी फैमिली का, उसके पूरे कम्युनिटी का वही एक्सपीरियंस है। अब यहाँ मेरा सवाल है और आपसे रिक्वेस्ट है, अपने जरा माइक ऑन करके मुझे इसके जवाब दीजिए, या चैट बॉक्स में भी आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि आपदा ऑफिसर एसबीसीसी, जिसकी अभी कुछ देर पहले हमने बात की, सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, बहुत सारे लेवल्स की बात की, इन्फ्लुएंसर्स की बात की, किस तरह उसका यूज करके आपदा ऑफिसर जो है वो कम्युनिटी को गाइड कर सकता है। तो आपकी सजेशंस क्या हैं आपदा ऑफिसर के लिए? मैं वो आपदा ऑफिसर हूं, आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या करूं अपनी कम्युनिटी में। जी प्लीज। सर, आपदा ऑफिसर को यह बोलना चाहिए कि साइक्लोन आए या न आए, पहले से हमें तैयार होकर रहना चाहिए, ताकि यदि प्रॉब्लम आए तो उसको हम मिनिमाइज कर सकें, हम सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम को। ओके, थैंक यू। कंचन नाम है ना आपका? क्या नाम है आपका? सर, विजय कुमार मिश्रा। सर, विजय कुमार मिश्रा। थैंक यू विजय। आप कहाँ से हैं? सर, बेसिकली तो मैं झारखंड से हूँ सर, लेकिन त्रिपुरा में सर्विस करता हूँ। नहीं, डिपार्टमेंट पूछ रहा हूँ सर। त्रिपुरा स्टेट राइफल सर। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। जी जी, और कोई बताएं? जी सर, आपदा ऑफिसर को एक सिनेरियो प्लानिंग करके, कुछ प्लान करके रखना पड़ेगा कि पॉसिबल सिनेरियो जब इस तरह का हो तो वो पहले से ही तैयार रहे, विद प्रिपरेशन पहले से ही। ओके, तो एक सिनेरियो प्लानिंग, और उस सिनेरियो प्लानिंग के बेस में, उस सिनेरियो प्लानिंग की जरा थोड़ा सा बताएंगे, दो और चीज के क्या क्या उसका पार्ट होना चाहिए इंपॉर्टेंट सिनेरियो प्लानिंग का? सर, उसमें एक एरिया स्पेसिफिक जो हमारे डिजास्टर्स रहते हैं, एरिया स्पेसिफिक जो हमारे कुछ लोकलाइज्ड डिजास्टर्स रहते हैं, उसकी एक चेकलिस्ट तैयार करके, और पहले से ही हमारे जो दूसरा उसमें कंपोनेंट हो सकता है कि मोबिलाइजेशन जो है हमारी पहले से ही, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, उनको तैयार रखे इसी तरह से। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मोबिलाइजेशन के लिए हमारे जो फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर्स हैं वो कौन हो सकते हैं, उनकी एक लिस्ट हो। ओके, वेरी गुड जी। आपका नाम? हेलो, मैं सरदार रमीज करके, जम्मू कश्मीर से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। सरदार रमीज, थैंक यू वेरी मच सरदार रमीज। और J&K के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अर्थ प्रोन है, तो हमें इस तरह से जो पहले से वो उसकी लिस्ट होनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू जी। और कौन बता रहे हैं? हितेश नारायण मित्र जी। नारायण मित्र जी, नारायण या yes sir, I am from Tripura. Yeah. Actually this awareness program is continue from the school level, because student is our best media. So any kind of disaster, it is very necessary for awareness and how to rescue if we face this disaster. It is very important. And it is started from the school level to university. In our state, sometimes it occurs in the school program, in the city, crowded place. पे डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो डिजास्टर के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, ये सब दिखाते हैं हमारे स्टेट में। ओके, थैंक यू। एक मैं लास्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट करूंगा किसी हमारी लेडी साथी से, क्योंकि मैंने अभी तक किसी महिला साथी से कुछ नहीं सुना। तो बताइए आपदा ऑफिसर को आपकी क्या एडवाइस है? एनी लेडी? हाँ सर जी, मेरा नाम संगीता है, मैं कोलकाता से हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें कम्युनिटी की अवेयरनेस की बात हम कर रहे हैं, तो कम्युनिटी को बहुत क्लोजली इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। सिर्फ अवेयर करना ही नहीं, मॉक ड्रिल करना भी ज़रूरी है। कभी कभी मॉक सिचुएशन तैयार करना कि जब डिजास्टर आए तो कैसे हमको रिस्पॉन्स करना चाहिए, वो सिचुएशन तैयार करना और उन लोगों को कैपेसिटेट करना, उन लोगों को अकाउंटेबल करना फॉर रिस्पॉन्स, ये भी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही संगीता जी, कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना। और अब अगर हम देखें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं अपने फिर से आप माइक म्यूट कर सकते हैं, अगली बार फिर से हमारे जब डिस्कशन होगा तो वी विल आई रिक्वेस्ट यू टू। बात बोलना चाहता। हेलो जी, बताएं। जी सर, मेरा बोलना है कि जैसे सोशल मीडिया आज बहुत सारे यूज करते हैं, तो इसमें अगर वो सूचना दिया जाए तो और भी बेहतर हो सकता है कि सब कोई अवगत रहे इसके बारे में।
थैंक यू हेमंता। हेमंता नाम है ना आपका? जी हेमंत प्रधान। हाँ हेमंत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अब भी बस 2 मिनट ठहर जाइए, थोड़ी देर बाद हम उसी पर आ रहे हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं अभी। ओके, थैंक यू जी। सो हमने जो बात की, देखिए यहाँ पर कि किस तरह से हम एसबीसीसी की अप्रोच यूज करके कम्युनिटी को गाइड कर सकते हैं। आप ही लोगों ने अब हमें बताया कि भाई देखिए कहीं हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें स्कूल लेवल पर बच्चों। तो आप देखिए कम्युनिटी के एल्डर्स के द्वारा कम्युनिकेशन और दूसरी तरफ एक बच्चे के द्वारा भी कम्युनिकेशन, क्योंकि बच्चा भी जाकर अपनी फैमिली को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो स्कूल से शुरू होगा। फिर एक जो मोबिलाइजेशन के एक तरह की लिस्ट बनाने की बात की कि कौन होंगे जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, और कौन जाके कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उसके बाद एरिया स्पेसिफिक चेकलिस्ट वगैरह तैयार करके काम करना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दीज इनपुट्स, वेरी यूजफुल। हम आगे चलते हैं कि मेरे पास 2 पिक्चर दिख रही हैं, और आपने अभी कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात की है। इस कम्युनिटी एंगेजमेंट को लेकर यहाँ पर 2 पिक्चर दिख रही हैं, और एक जैसे हम जब आप लोग छोटे थे तो वो आपके कॉमिक्स में एक क्वेश्चन होता था ना, स्पॉट द डिफरेंस। तो जरा इन दोनों पिक्चर्स में मुझे बताएं कि आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है। दोनों में सर एक में है पहले से प्रिपेयर हुआ है, और दूसरे में है कि यह लोकल जो साधन है उसमें उसको इस्तेमाल करके इसको डिजास्टर को मिनिमाइज करना। ओके, एक में पहले से प्रिपेयर्ड कुछ दिखाया जा रहा है, हालांकि वो देखिए वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है। ये जो दिख रहा है यहाँ आपको इस पिक्चर में, एक में एक्चुअली दिखाई दे रहा है कि कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरे जगह पे दिखाई दे रहा है कि कम्युनिटी एक्चुअली यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है। जो फर्स्ट पिक्चर जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिख रही है, आपका कहना है कि उसमें कम्युनिटी इज मेयर ऑब्जर्वर ऑडियंस, और दूसरे वाले में कम्युनिटी खुद से काम कर रही है। और बिल्कुल आप लोगों ने ठीक बताया, यही डिफरेंस है इन दोनों में। दोनों ही पिक्चर में, अब मैं ये आपको बता दूं, ये वाली जो पहली पिक्चर है, दिस वन जो आपके स्क्रीन पर अब मैं दिखा रहा हूं, ये जस्ट उनको बोट बनाना सिखा रहे हैं लोकल मटेरियल से। सो हाउ लोकल मटेरियल से रेस्क्यू बोट बनाई जा सकती है वो सिखाया जा रहा है। और इसमें जो है वो उनको जो बाकी के फ्लड रिलीफ के और चीजें सिखाए जा रहे हैं। ये कम्युनिटी के आदमी ही खड़े हैं, यही कुछ जो भी करके दिखा रहे हैं। तो इन दोनों में से कम्युनिटी में रिटेंशन किस वाले का ज्यादा होगा? कम्युनिटी का एक्शन कौन से वाले में ज्यादा हो पाएगा? पहले वाला में सर। पहला वाला में? हाँ पहले वाले में। कौन से? जिसमें साधन को लोकली जो अवेलेबल है, लोकली जो, हाँ सेकंड वाला पिक्चर ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। सेकंड ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है सर। सेकंड में इजली जो ये मिलेगा सर के द्वारा, ये कम्युनिटी के लोग इसको जो है करके जो है ज्यादा मिनिमाइज कर सकेंगे और फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि ये इजली मिल जाता है। लेकिन सर ये जो लाइफ जैकेट है ये कंपनी मेड है सर, ये सफिशिएंट नहीं भी मिल सकता है, उस समय लॉस हो सकता है कम्युनिटी का। जी, जैकेट की सिर्फ बात नहीं है, ये जो जैकेट पहने खड़े हैं, जरा इनके फेसेस भी तो देखिए ध्यान से, इनके चेहरे देखिए, ये कहाँ के लोग हैं? ये लोकल लोग हैं। हाँ, तो उस लोकल आदमी को आपने क्या सिखाया? तो उनको हमने सिखाया कि ऐसे फ्लड या फिर ऐसे सिचुएशन में हम कैसे इसको मतलब जो उन्होंने हाथ में टायर लेके रखा है, तो इसका यूटिलाइजेशन हम मास मूवमेंट के लिए कैसे करें। जी, और ये लोग कम्युनिटी में ही रहने वाले हैं, ये तो इसी आसपास वहीं के हैं, तो आपदा के समय पर ये फर्स्ट लेवल पर अवेलेबल होंगे। सो सिंपल सी चीज हमारे जो यहाँ हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि अगर हमारा कम्युनिटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और कम्युनिटी हमारे एसडीएमए के गोल्स से अलाइंड होती है, तो वो उस विजन को आगे लेकर जा सकती है। इनफैक्ट ये जो राइट हैंड साइड पे पिक्चर है जो आप कम्युनिटी वाली देख रहे हैं, ये चंपारण की, वेस्ट चंपारण की, बिहार की पिक्चर है। तो आपने जो सिखाया वो कम्युनिटी में रह जाएगा। One comment I want to make: the similarity in both the pictures, women are missing. Had women been involved, it would have been more better. Even अनफॉर्चुनेटली दोनों फील्ड की पिक्चर्स हमने उठाई हैं, तो ये हमारे प्रोग्राम्स की सच्चाई है। और मैं अभी डॉक्टर एलिजाबेथ, आई विल कम टू दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दैट।
मैं अभी जस्ट 2 या 3 स्लाइड के बाद मैं इसी टॉपिक को भी लेकर आऊंगा कि प्लानिंग स्टेज पर ही क्या हम विमेन को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो बट ये सच्चाई है, ये दोनों पिक्चर्स हमें दिखा रहा है कि फील्ड में क्या हो रहा है। एनीवे, मैं सिर्फ ये कहूंगा अब कि ये जो हमारी वेस्ट चंपारण बिहार की पिक्चर है और इतने सारे कम्युनिटी के लोग खुद से ही ये काम करने के लिए खड़े हुए हैं, और तो और वो बैनर भी उसने अपने हाथ में पकड़कर खड़ा है पर्सन। तो इससे पहले आप सोचिए कि हाँ, आप जैसे ऑफिसर्स ने कितना काम किया होगा कम्युनिटी को इस लेवल तक लाकर तैयार करने के लिए। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ये एक दिन में नहीं हो गया होगा, बहुत लंबे टाइम तक जो एसडीएमए है, जो डिस्ट्रिक्ट के डिजास्टर टीम्स हैं, ब्लॉक लेवल के टीम्स हैं, उन्होंने बहुत टाइम तक काम किया होगा इस पर। तो हम आगे बात करते हैं कि बिहेवियर चेंज को लेके। बिहेवियर चेंज के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अवेयरनेस होता है। आप मुझे बताएंगे कि नहीं भाई, आजकल कोविड चल रहा है और ये हाथों के द्वारा जो अंदर पहुंच सकता है आपका वायरस, तो इसलिए हाथ धोने बहुत जरूरी है। ये आपने एक अवेयरनेस मुझे दे दी, लेकिन उसके ऊपर एक डिजायर मेरे अंदर भी होनी चाहिए वायरस से दूर रहने की, तभी मैं अपने हाथ धोऊंगा, वरना मैं हाथ नहीं धोऊंगा। फिर हाथ धोने की एक स्किल की हम बात करते हैं कि हाथ अगर धोने भी हैं तो कितनी देर तक धोने हैं, किस किस तरीके से धोने हैं, उंगलियों को कैसे धोना है, उंगली के बीच में, वो सब जो पूरा एक स्किल होती है उस बिहेवियर की, जो भी बिहेवियर आप मुझसे कराना चाह रहे हैं। फिर मैं उसको ट्राई करता हूँ, रिपीट करता हूँ, मेंटेन करता हूँ और सस्टेन करता हूँ। तो ये 7 अलग अलग लेवल्स हैं किसी भी नए बदलाव को, किसी भी नए बिहेवियर को अपनाने के, और इसमें वो किसी भी लेवल पर छूट सकता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप इस ट्रेनिंग के बाद सब याद कीजिएगा कि कितनी बार आपने कुछ नया काम करने का प्रण लिया कि मैं फ्रॉम दिस 1 जनवरी आई विल स्टार्ट डूइंग दिस, जो भी कुछ, आई विल स्टार्ट मॉर्निंग वॉक, आई विल स्टार्ट रीडिंग, आई विल स्टार्ट म्यूजिक, और उसके बाद कितने दिन तक हम उसको, कितने काम को कर पाए और कितने काम को बीच में छोड़ दिया। तो ये हमारा बीच में ड्रॉप आउट कहीं भी हो सकता है, और ये ड्रॉप आउट ना हो इसके लिए यहाँ राइट हैंड साइड पर देखें तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जरूरी है। एक ऐसी एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल जो सपोर्ट करे बिहेवियर चेंज को, जिसके लिए हम गवर्नमेंट के जो कम्युनिटी नेटवर्क्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे एसएचजी, सीएसओ ग्रुप, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल एसोसिएशन नेटवर्क, जिनके मैंने पहले भी बात की इस सब। तो ये एक बहुत जरूरी है कि हम एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट तैयार करें बिहेवियर चेंज के लिए। तो हमने इस सेशन में अभी तक क्या क्या बात की कि सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल जो है उसके 5 लेवल्स हैं, इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी। और कम्युनिकेशन जो है हमारी, वो इन सारे बिहेवियर्स को एड्रेस करनी चाहिए, तभी बिहेवियर चेंज होगा। नंबर 2 हमने बात की कि इनमें से हर लेवल जो है उसका एक यूनिक कम्युनिकेशन अप्रोच होगा। आईपीसी हो सकता है, मोबिलाइजेशन हो सकता है, एडवोकेसी हो सकता है। तीसरा, हमने इस सेशन में बात की कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल हैं जिनके जरिए, जिनके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कम्युनिटीज मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर फेसिंग डिजास्टर रिस्क थ्रू सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। हमने एक बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम के कहानी से हमने बात की कि अगर चेंजेस ग्रेजुअल हैं तो लोगों को उसको उसके खतरे को वो परसीव करने के लिए तैयार नहीं रह पाते, और फिर हमारा काम है कि हम उस खतरे से उनको, रिस्क से उनको तैयार कराएं, उनको समझवा पाएं कि ये रिस्क कितना है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के 4 स्टेजेस की हमने बात की, प्रिपेयर्डनेस फेज, रिस्पॉन्स फेज, मिटिगेशन फेज और रेजिलियंस फेज। और इनमें से अलग अलग जगह कम्युनिकेशन जो है किस तरह हर फेज के हिसाब से कॉन्टेक्चुअलाइज होगा, उस पर हमने चर्चा की। और एंड में हमने बिहेवियर चेंज प्रोसेस की बात की कि उसके 7 स्टेजेस हैं, और कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि उन 7 स्टेजेस के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाए। और वो 7 स्टेजेस हमारे थे: अवेयरनेस, डिजायर, स्किल्स, ट्राई आउट, रिपीट, मेंटेन और सस्टेन। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन खत्म हुआ। आफ्टर दिस सेशन वी विल रिक्वेस्ट फॉर योर फीडबैक, जो आप प्लीज इस सेशन के बारे में चैट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक टाइप कर दें। और ये एक क्वेश्चन है जो यहाँ इसका लिंक आपको दिख रहा होगा, इस लिंक को हम
चैट बॉक्स में भी अभी तो डाल देते हैं, तो उसमें वहां ये 3 सवाल होंगे, प्लीज आप उनको आंसर कर दें। हमारा अगला सेशन है कम्युनिकेशन को लेके, कम्युनिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। तो अभी हमारे कुछ देर पहले हेमंत ने बात की थी सोशल मीडिया की भी, हम यहाँ पर उसकी बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन चैनल्स की, कि हमारे पास क्या क्या कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। तो यहाँ हम क्या बात करेंगे कि एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल्स क्या हैं और मिक्स ऑफ चैनल्स किस तरह से यूज करनी चाहिए बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर अ डिजास्टर। अब अगर जो कम्युनिकेशन अप्रोचेस जिनकी हमने कुछ देर पहले बात की थी वो क्या क्या है, पहले तो हम ये देखें। हमारे पास एक बीसीसी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, बीसीसी बोले तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। देन बीसीसी आईसी मटेरियल्स और मास मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। और ये हमारे पास चारों स्टेजेस हैं, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, मिटिगेशन, रेजिलियंस। तो हर स्टेज पर अलग अलग चीजों का, अलग अलग मीडिया का, अलग अलग चैनल का अलग अलग यूज होगा। जैसे प्रिपरेशन के स्टेज पर होम विजिट भी पॉसिबल है, पीयर कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, तो वहां ये किया जा सकता है। मास मीडिया और मिड मीडिया की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट प्लेस, बैनर्स, लीफलेट्स, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और न्यूज़पेपर, इसके द्वारा हम जानकारी पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया में एसएमएस के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, और मोबिलाइजेशन में जो हमारे वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क हैं, जो हमने कुछ देर पहले बात की ना, एसएचजी है, कोई फेडरेशन है, मदर्स एसोसिएशंस हैं, तो उन नेटवर्क्स के द्वारा भी हम तैयारी के लिए अपनी कम्युनिकेशन आगे पहुंचा सकते हैं। और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में अवेयरनेस ड्राइव्स, ग्राम सभा मीटिंग्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई कम्युनिकेशन आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे अब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को आप देखें तो प्रिपरेशन फेज पर हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस ड्राइव्स करा सकते हैं, ग्राम सभा की मीटिंग्स करा सकते हैं, लेकिन यही कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जब हम रेस्पॉन्स में बात कर रहे हैं तो हम कम्युनिटी से सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशंस में सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग स्टेज पर ये कम्युनिकेशन हमारा अलग अलग तरह से हो सकता है। एक एग्जाम्पल सिर्फ मैं दूंगा अब इसके लिए, और ये एग्जाम्पल हमारे ही जस्ट अबाउट 1.5 साल पुरानी है, केरला की। ये एक केरला की वेबसाइट है जो आपको दिख रही है, keralarescue.in। इस वेबसाइट पर आप देखें रिक्वेस्ट फॉर रेस्क्यू। अब ये रिक्वेस्ट कौन करेगा? ये तो कम्युनिटी करेगा। और क्या दिख रहा है? रिक्वेस्ट का, ठीक है, जो रिक्वेस्ट आई हैं उनका क्या हुआ। दूसरी तरफ क्या दिख रहा है? पब्लिक इंफॉर्मेशन फीड। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन कौन देगा? ये डिजास्टर मैनेजर्स देंगे, यानी गवर्नमेंट देगा। तो इस वेबसाइट की खास बात आप ये देखें कि इसमें गवर्नमेंट से पब्लिक को भी कम्युनिकेशन हो रही है और पब्लिक द्वारा गवर्नमेंट को भी हो रही है। सो इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि कैसे शुरू हुआ। 10 अगस्त 2018, 10 अगस्त 2018 को IEEE कोची का जो हब है, उन्हें ये आइडिया आया कि भाई एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए जिसपे वॉलंटियर, पब्लिक और गवर्नमेंट तीनों एक साथ हों, क्योंकि फ्लड सिचुएशन आई है और उस फ्लड सिचुएशन से निपटने के लिए। ये बात है 10 अगस्त की। 11 अगस्त को उन्होंने एक बेस साइट बना दी और उसको अपलोड कर दिया। किस काम के लिए? उस बेस साइट पर हो रहा था वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग लोगों की प्रॉब्लम्स की। 13 अगस्त को, यानी 10 तारीख के जस्ट तीसरे दिन, इन्होंने इस वेबसाइट को डिमॉन्स्ट्रेट किया उन 5 डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम्स को जो सबसे ज्यादा फ्लड से अफेक्टेड थे, एर्नाकुलम, पलक्कड, मलप्पुरम, वेनाड। और 15 अगस्त को सीएम ने अपने फेसबुक पोस्ट से यह डिक्लेयर कर दिया कि keralarescue.in जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में 5 दिन के अंदर अंदर दिस वेबसाइट बिकेम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ केरला गवर्नमेंट। अब 20 अगस्त आते आते अगले ही 5 दिन में जो हेल्प की रिक्वेस्ट हैं वो 4000 से बढ़कर 57,000 पे पहुंच गई, और जो वॉलंटियर्स का नंबर है वो 250 से बढ़कर 10,000 पे पहुंचा और लगभग 13 अगस्त तक 50,000 तक पहुंच गया। अभी क्या दिखा रहा है हमको कि अगर कम्युनिकेशन हमारी दो तरफा है, यानी एक डायलॉग है
और लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जाता है, और जब लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जाता है तो कैसी कैसी कम्युनिकेशन होती है, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसी कम्युनिकेशन, इसी वेबसाइट के मैं दिखा रहा हूं। ये पहला एग्जाम्पल देखिए, किसी ने मैसेज भेजा है कि प्लीज कंसीडर डोनेटिंग फॉर दिस कॉज, और वो क्या कह रहा है कि मैंने 15,000 नेपकिन जो है वो डिलीवर करा दिए हैं और बाकी और ज्यादा कराने हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को लेकर भी लोग इस पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज फ्लड्स के टाइम में वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा देखिए, सनराइज हॉस्पिटल काकानाड opens for complete free treatment for flood relief patients including surgeries। तो वो कोई बता रहा है कि भाई हमारा ये हॉस्पिटल, सनराइज हॉस्पिटल जो है उसका डायरेक्टर बता रहा है ये खुल गया है और आप इसको फ्री ट्रीटमेंट के लिए खुल गया है, so you can come any flood victim। तो ये एक मेडिकल एड हो गया। और यहाँ देखिए, anyone in Kerala who could coordinate this effort and reduce the amounts of plastic garbage। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैसेज उसी वेबसाइट पर। सो उस वेबसाइट पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो लोग जो हैं उसका मल्टीपल यूज करते हैं वेबसाइट का। हमने अभी तक इसमें अब क्या बात की कि हर स्टेज ऑफ डिजास्टर के लिए इसका अपना एक कम्युनिकेशन का अप्रोच होगा, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चैनल्स को यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अप्रोचेज हैं हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी फेस टू फेस या दो व्यक्तियों के बीच में या तीन व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन, मास मीडिया, मिड मीडिया, सोशल मीडिया, कम्युनिटी और सोशल मोबिलाइजेशन और एडवोकेसी। वाइल प्लानिंग कम्युनिकेशन, बहुत सारे चैनल्स और इंटरवेंशन शुड बी कंसीडर्ड जो उस फेज ऑफ डिजास्टर के हिसाब से बेस्ट सूट करें। और जो कम्युनिकेशन चैनल और मीडिया मिक्स को जब हम प्लान करें तो उस मीडिया मिक्स की, उस कम्युनिकेशन चैनल की रीच को, यानी वो लोगों तक उसकी पहुंच कितनी है, उसको एसेस करके ही होना चाहिए। जैसे जिन एरिया में लिटरेसी अगर लो है तो वहां हमारा जो पोस्टर या बैनर दिखेगा लोगों को, पर शायद मैसेज लिमिटेड लोगों को दे पाएगा। तो जो लोगों की रीच उस मैसेज की कितनी है, इसकी हमने बात की। तो ये 4 पॉइंट्स हमने बात की है जो हमने इस सेशन में डिस्कस किया है। फिर से मैं आपके सामने वही प्लीज कुछ सवाल रखूंगा और उसी वाले फॉर्म पे जो आपने पहले ओपन किया था, अब अगले 3 क्वेश्चंस के आप आंसर्स कर लें और साथ के साथ इस सेशन के ऊपर अपने कमेंट्स भी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। इस सेशन में क्या चीज आप चेंज कराना चाहेंगे, क्या अच्छा लगा या क्या और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, बेटर करने की जरूरत है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है SBCC RCCE की प्लानिंग को लेकर कि हम ये प्लानिंग में क्या करें। और जैसा कि मैंने रिस्क इन्फॉर्म प्लानिंग के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं हम इस पर डिस्कस करेंगे, और जो प्लानिंग की मैट्रिक्स है उसमें हम कैसे उसको फिलअप कर सकते हैं हम उस पर बात करेंगे। अब ये जो कुछ देर पहले मैंने डॉक्टर एलिजाबेथ से कहा था कि हम वो जो 2 फोटो थे याद है, उसमें वीमेन नहीं दिख रही थी हम, और मैंने कहा था कि मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा कि वो वीमेन हमको कैसे दिखें। और यहाँ इस फोटो में आप देखिए, यहाँ आपको दोनों तरफ लेडीज भी दिख रही हैं और दिख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन देखिए क्या है, किसी भी रिस्क प्लानिंग को, किसी भी डिजास्टर के टाइम आपकी कम्युनिकेशन प्लान, आपके जो डिजास्टर मिटिगेशन प्लान्स और कंप्लीट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जिसे हम कहेंगे, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम महिलाओं के, लड़कियों के रोल को और उनकी लीडरशिप को बाकायदा प्लान करें। और इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है कि विमेन और चिल्ड्रन जो होते हैं वो किसी भी डिजास्टर के समय ज्यादा रिस्क पे होते हैं। उनको चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो कोई केमिकल डिजास्टर हो। सो नॉर्मली आपको हर डिजास्टर में ये मिलेगा कि विमेन एंड चिल्ड्रन आर मोर एट रिस्क ड्यूरिंग अ डिजास्टर। तो इसलिए ज्यादा जरूरत है कि हमारी कम्युनिकेशन में और हमारे डिजास्टर ड्रिल्स में वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बने उसका। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो उनका प्रेफर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है विमेन और गर्ल्स का, वो हो सकता है कि मेन वाले चैनल से अलग हो। तो अभी हमने पिछले सेशन में बात की कि हम किस तरह से चैनल सेलेक्ट करें, किस तरह से मीडियम हम सेलेक्ट करें कि जो हमारे लोगों तक पहुंच जाए। तो सेम मीडियम जरूरी नहीं है कि लोगों तक पहुंचे।
क्योंकि उनकी जैसे यहाँ एक एग्जांपल भी दी है कि लिमिटेड एक्सेस है फोन पर उनकी। फोन कई बार जो है घर में हो सकता है कि मेल फैमिली मेंबर के पास हो और वो फोन घर में विमेन या चिल्ड्रन के पास ना रहता हो। हम कहें कि हम कम्युनिटी रेडियो पे अनाउंस कर देंगे, तो ये याद रखिए कि कम्युनिटी रेडियो पे आदमियों के सुनने का टाइम अलग हो सकता है, औरतों के सुनने का टाइम अलग हो सकता है। आदमी जिस टाइम सुन रहा है, औरत शायद अपने किसी काम में बिजी होगी, या औरत जिस टाइम सुन रही है तो आदमी हो सकता है अपने खेत पर या दुकान पर बिजी होगा। तो इस तरह दोनों के टाइमिंग्स भी अलग अलग हो सकते हैं सेम चैनल के। तो ये बेसिकली हर चैनल की रीच जो है वो विमेन को लेकर और मेन को लेकर अलग हो सकती है। तो इसका हम अपनी कम्युनिकेशन प्लानिंग में ध्यान रखें, और इसके लिए जरूरी है कि एक सेग्रीगेटेड डेटा हमारे पास हो। इक्विटी लेंस के जरिए मॉनिटरिंग के टाइम पर हम आदमियों का अलग से देखें और महिलाओं का अलग से देखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो किसी भी प्लानिंग में, और खास तौर पे हमारे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के प्लानिंग में जरूरी है। इससे आगे हम चलते हैं तो हमारे जो रिस्क इन्फॉर्म प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका पहला हमारा कंपोनेंट है कि हम जो रेजिलियंस और पीस, यानी आई एम सॉरी रेजिलियंस में हिंदी में नहीं मुझे याद आ रहा है कि इसको क्या कहना चाहिए, तो मैं रेजिलियंस ही कहूंगा। और जो पीस है, अमन है, वो एक सेंट्रल गोल होना चाहिए रिस्क इन्फॉर्म प्लानिंग का। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ डेवलपमेंट की ही बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द प्रोग्रेस फॉर वल्नरेबल कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिटीज वल्नरेबल हैं। अभी पिछली स्लाइड में मैंने बात की उदाहरण के तौर पे कि महिलाएं एक वल्नरेबल कम्युनिटी हैं, एल्डरली लोग एक वल्नरेबल कम्युनिटी हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग किसी भी डिजास्टर के टाइम पे वल्नरेबल कम्युनिटीज होंगे, और बहुत सारे लोग जिनके शायद होमलेस हैं, या अलग अलग डिजास्टर के हिसाब से और अलग अलग एरिया के हिसाब से ये वल्नरेबल कम्युनिटीज भी हमारी अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ जरूरी ये है कि हम जो भी उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ये हमारी एक रिस्क इन्फॉर्म प्लानिंग होनी चाहिए। और उस प्लानिंग के लिए एक जरूरी चीज ये है कि हमें पता हो कि वल्नरेबल कम्युनिटीज कौन है, एंड देन हम उन कम्युनिटीज को टारगेट करें, स्ट्रेंथन करें लिंकेजेस को बिटवीन ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट वर्क। सो ह्यूमैनिटेरियन वर्क वो है जो डिजास्टर के टाइम आप इमरजेंसी में करा रहे हैं, और डेवलपमेंट वर्क वो है जो हमारे डिपार्टमेंट्स, हेल्थ हो गया, ICDS हो गया, वो नॉर्मल कोर्स में करते ही चले जाते हैं। और इंटरडिपेंडेंट वर्क जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, क्लाइमेट चेंज का, तो हम उसको एक कन्वर्जेंस के हिसाब से देखकर चलें। कोई भी डिजास्टर अकेले में नहीं होता, ये हम याद रखें। ठीक है, मेजर उस टाइम पे वो दिख रहा होगा, लेकिन जब हम प्रिपेयर्डनेस वाला हमारा फेज है तो उसमें हम एक कन्वर्जेंस अप्रोच ले सकते हैं, और प्लानिंग जो है इन सब कंसिडरेशंस पर बेस्ड हो। अब इसके लिए हमें क्या क्या कम्युनिकेशन चाहिए होगी, तो जो सहनशीलता यानी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए और अमन बढ़ाने के लिए हमारे एडवोकेसी पॉलिसी मेकर्स से करना पड़ेगी। नंबर 2, अगेन एडवोकेसी विद पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि हम डेवलपमेंट को वल्नरेबल कम्युनिटी के लिए कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं। टारगेट जब हमने करना है मोस्ट एट रिस्क पॉपुलेशंस को, तो हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी पॉपुलेशंस के साथ। लिंकेजेस को स्ट्रेंथ करने के लिए हमको कन्वर्जेंस की कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। नंबर 5 के लिए फिर से हमें एडवोकेसी भी करनी पड़ेगी, और कम्युनिकेशन और कन्वर्जेंस तीनों चीजें करना पड़ेगा। और नंबर 6 के लिए हमें कम्युनिटी से फीडबैक लेना पड़ेगा टू गैदर एविडेंस, ताकि हमारी प्लानिंग, हमारी रिस्क इन्फॉर्म प्लानिंग जो है वो एविडेंस बेस्ड हो। तो ये अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन का गोल है हमारा, अलग अलग कंपोनेंट्स को लेके। और जब हम इंफॉर्मेशन लेंगे तो देखिए हमारी सबसे पहली स्टेज जो यहाँ दिख रही है वो है डेटा कलेक्शन। इस डेटा कलेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा वेरिफिकेशन। आपने पीछे अगर देखा होगा, एक जो जब मैं केरला रेस्क्यू इन दिखा रहा था, वहां एक पर्टिकुलर के ऊपर लिखा हुआ था वेरीफाई, और मैंने वेरीफाइड, और मैंने कहा था कि मैं इस वेरीफाई की आगे बात करूंगा। तो डेटा प्रोसेसिंग की स्टेज पर आप देखें, डेटा को फिल्टर करना, फॉर्मेट करना, वेरीफाई करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उसके बाद ही शेयर करना लोगों के साथ, शेयर करना आगे उस पर काम करने के लिए। और आगे काम होगा कि उसके बेस पर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेज पर उसकी प्लानिंग हो, शेड्यूलिंग हो, और फाइनली उसके डेटा के हिसाब से हम अपने प्लान्स बनाकर उनको ऑपरेशनलाइज करें। तो ये हमारा है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, और इसी तरह के ये 5 फेजेस होंगे ड्यूरिंग द डिजास्टर के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्शन के। ये प्लेटफॉर्म्स, कम्युनिकेशन
के हमने पहले बात कर ली है। अब मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कम्युनिकेशन के क्या चैनल्स की हमने बात की है, जरा देखें तो हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात की, आईसी मटेरियल यूज करने की बात की, मिड मीडिया यूज करने की बात की, मास मीडिया यूज करने की बात की और सोशल मीडिया यूज करने की बात की इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। अब हम जो प्लानिंग के हमारे फाइनल कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, यानी गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास क्या क्या इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनको हम अपनी कम्युनिकेशन, अपनी डिजास्टर प्लानिंग में यूज कर सकते हैं। दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस की और उनके लोगों की कैपेसिटीज करंटली क्या हैं और उनमें हमको किस तरह से उसको और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, तो उनकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद हमारे जो ये आइडेंटिफाई करना कि हमारे पार्टिसिपेंट ग्रुप्स कौन होंगे, पार्टिसिपेंट ग्रुप्स यानी हमारे ऑडियंसेस कौन होंगे, मैसेजेस क्या होंगे, की बिहेवियर क्या है जो हम बदलवाना चाहते हैं और किस मीडियम से हम देंगे और कौन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस मैसेज को देंगे। उसके बाद हमारे मैसेजेस आगे पहुंच गए तो उस मैसेजिंग की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करना कि कम्युनिकेशन एक्टिविटीज जो हमारे हो रहे हैं, जो हमने प्लान किए थे वो उसी तरह हो रहे हैं और उसका हमने जो भी इवैल्यूएशन करके इफेक्ट हमने चाहा था वो हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड यस फाइनली बजटरी एस्पेक्ट्स के बजट क्या होंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो हम यूज कर सकते हैं प्लानिंग मैट्रिक्स। नंबर 1, व्हाट वी नीड टू से, हमें कहना क्या है, यानी कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पर हमें कम्युनिकेट कराना है, करेगा कौन इस काम को, हु विल गिव द मैसेज, सेज व्हाट, एग्जैक्ट मैसेज होगा क्या, यूजिंग व्हाट चैनल्स, किन किन चैनल के द्वारा ये मैसेज दिया जाएगा, किसको मैसेज दिया जाएगा, कि हमारे जो मैसेज का टारगेट है वो कौन है और उसको मैसेज जब मिल जाए तो हम उससे चाहते क्या हैं, हम उस पर्सन से क्या एक्शन चाहते हैं मैसेज के, और बजट। ये हमारे 7 कॉलम्स हैं। एक एग्जांपल यहाँ है कि हम ये चाहते हैं कि भी सारे जो बच्चे हैं जो 15 साल तक के, वो किसी फ्लड अगर कहीं आ गया है तो उसमें एटलीस्ट उनका जो मीजल्स का वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो, हम ये चाहते हैं। अब ये मैसेजिंग हमारा करेगा कौन, एएनएम करेगी, आशा करेगी, आंगनवाड़ी वर्कर करेगी या कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर कहीं है तो वो करेगा। ये एक एग्जांपल है, और भी लोग हो सकते हैं जब आप प्लान करें तो। मैसेज क्या होगा, सिंपल मैसेज तो डायरेक्ट ये होगा कि भाई इम्यूनाइज योर चाइल्ड इफ ही और शी इज लेस देन 15 years of age to protect from measles। किस किस तरह से ये दिया जा सकता है मैसेज, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द्वारा, होम विजिट से, कम्युनिटी डायलॉग्स द्वारा, कम्युनिटी के लेवल पे मीटिंग छोटी मोटी हो और वहां मैसेज दिया जाए, और मास मीडिया के द्वारा। किसको मैसेज दिया जाएगा, अफेक्टेड फैमिलीज को जो फ्लड से अफेक्ट हुए हैं, और उसके बाद हम चाहते क्या है कि फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जो भी नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है वहां पर लेकर आए। तो ये एक हमारी प्लानिंग मैट्रिक्स है। सो हमने इस सेशन में क्या क्या बात की, सबसे पहले हमने कहा कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो है वो प्लानिंग स्टेज से ही शुरू होगी। वो क्यों, क्योंकि बच्चे और औरतें जो हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको ज्यादा रिस्क होता है। दूसरा हमने बात की कि रेजिलियंस यानी सहनशीलता और पीस यानी अमन जो है वो हमारे एक सेंट्रल गोल होना चाहिए रिस्क इन्फॉर्म प्लानिंग का। ह्यूमैनिटेरियन वर्क और डेवलपमेंट वर्क को क्लोज करने की जरूरत है रिस्क इन्फॉर्म प्लानिंग में। एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज जनरेटेड एट द कम्युनिटी लेवल। जो एविडेंस होगी प्लानिंग पर्पज की वो हम कम्युनिटी लेवल पर ही जनरेट करेंगे, और डेटा जो इस तरह से हम कलेक्ट करते हैं वो वेरियस स्टेजेस से पास करेगा, जो 5 स्टेजेस हमने डिस्कस की थी, फाइनली ऑपरेशनलाइजेशन तक जाने में और ऑपरेशनलाइजेशन को मोल्ड करने में। कम्युनिकेशन चैनल्स हमने बात की, आईपीसी, मिड मीडिया, मास मीडिया, सोशल मीडिया और एप्रोप्रिएट यूज ऑफ आईसी मटेरियल्स, कि वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से और ऑडियंस के हिसाब से सेलेक्ट होना चाहिए। और हमने प्लानिंग के 5 कंपोनेंट्स की बात की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स, दूसरा कैपेसिटी डेवलपमेंट, तीसरा सिलेक्शन ऑफ ऑडियंसेस, मैसेजेस एंड मीडिया, चौथा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, और 5वां बजट्स। तो ये हमारा सेशन था प्लानिंग पर। प्लीज फिर से इस सेशन के ऊपर अपना फीडबैक दे दें, और ये उसी क्वेश्चन लिंक पे ये वाले 3 क्वेश्चंस प्लीज टिक कर दें, फीडबैक एंड सजेशंस फॉर द सेशन प्लीज। और लास्ट सेशन है हमारा जो मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं कि हमने जब कम्युनिकेशन प्लान बना लिया तो कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन प्लान ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा।
तो उसमें हम एक्सप्लेन इस सेशन में करेंगे मॉनिटरिंग क्या है, इवैल्यूएशन क्या है और वो डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है। ठीक है, डॉक्टर गौरव सिन्हा ने यहाँ पर एक चीज टाइप किया है, ग्रेप वाइन थ्योरी एंड गॉसिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एनी डिजास्टर। देखिए होता क्या है कि ग्रेप वाइन टिपिकली ये है कि ए ने बी से सुना, बी ने सी से सुना, सी ने डी से सुना और वो इस तरह से बड़े फास्ट मूव करता है। और ये याद रखिए कि आजकल का जो सोशल मीडिया वाला टाइम है उसमें तो ये और भी ज्यादा स्पीड से पास ऑन होता है। लेकिन यहाँ अब किसी ने चाइनीज विस्पर लिखा है। दोनों में अब जब हम सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, अगर वर्ड ऑफ माउथ से वो इंफॉर्मेशन आगे जा रहा है तो वो इंफॉर्मेशन कई बार कुछ का कुछ हो जाता है। लेकिन आप व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं चेन में, तो मैसेज तो वही रहेगा, लेकिन वहां भी वो चाइनीज विस्पर होती है। उस मैसेज की अंडरस्टैंडिंग हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है और वो अपने हिसाब से उस मैसेज को समझेगा। अब आप ग्रेप वाइन को एज डिजास्टर मैनेजर्स, आप सब लोग और हम ग्रेप वाइन को रोक तो सकते नहीं, हम र्यूमर्स को नहीं रोक सकते, हम सिर्फ उन सबको काउंटर कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव कम्युनिकेशन से। सो व्हाट वी विल हैव टू टेक नोट ऑफ कि वहां से क्या जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है, एटलीस्ट उसका हम ट्रैक तो रखें, तो कहीं ना कहीं वो ग्रेप वाइन हम तक भी पहुंचे। सबसे पहले तो हमें ये एज ए कम्युनिकेटर्स ये चैनल ओपन करना पड़ेगा। और किसी से वो पहुंच भी गई हमारे पास र्यूमर, तो एटलीस्ट हम उस पर्सन को फौरन ये ना कहें कि तुम क्या गलत मैसेज हमें दे रहे हो, क्योंकि वो अगली बार ऐसा मैसेज आपको भेजेगा भी नहीं। तो आने दीजिए वो सब आपके पास और फिर प्लान कीजिए अपनी कम्युनिकेशन में हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू इट। सो दैट्स द बेस्ट वे एंड दैट्स द टेक्निकल वे ऑफ डीलिंग विद इट। ओके, और उसके बाद फिर हम उसमें मॉनिटरिंग में आएंगे कि वेदर दैट इज वर्किंग और नॉट। अगर नहीं काम कर रहा तब हम I just wanted to वर्षा विल I just wanted to add और एक चीज, अगर आपने देखा होगा निसार ने बात की थी इंफॉर्मेशन फ्लो की। तो जब इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, एक काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन को आपको मॉनिटर करना होता है और किस तरह से आप उन मिथ्स से मिस इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करते हो। और इसीलिए अगर आप देखें तो कुछ इस पे वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन का टैग भी लग के आया था। तो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट यू आर लुकिंग एट। थैंक यू। ओके, थैंक यू वर्षा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं एक मैसेज किसी का देख रहा हूं कि मैं रेस्पॉन्स नहीं दे सका क्योंकि मेरे पास लिंक नहीं आया था। तो इसी चैट बॉक्स में आप ऊपर देखिए तो वो लिंक है उसका और उस पर आप रेस्पॉन्स दे सकते हैं। ओके, ये रहा, ये देखिए, ये आपके चैट बॉक्स में लिंक है, तो आप इसी लिंक पर आपको अपना रिस्पॉन्स दे दीजिएगा अभी तक के सेशंस का। ओके, नाउ मॉनिटरिंग क्या होता है? मॉनिटरिंग जो है वो हमारा ट्रैक करता है और मेजर करता है प्रोग्राम की एक्टिविटीज को, व्हाट इट इज डूइंग, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कितना हो रहा है, कब हो रहा है। ये सब मॉनिटरिंग के इनपुट्स हैं जो आपके पास आते हैं। तो इससे हमें प्रोग्राम की प्रोग्रेस पता लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लान किया था कि जी मेरे कम्युनिटी रेडियो पे सुबह 7 बजे मेरा मैसेजिंग आना चाहिए, दोपहर को 1-1:30 बजे जब लोग थोड़े फ्री हो, जो लोग उस टाइम फ्री होते हैं उस टाइम आना चाहिए, और शाम को 6 बजे आना चाहिए जब लोग घर पहुंच गए। तो सिर्फ ये ट्रैक करना कि क्या उस टाइम पर मेरे मैसेज का ब्रॉडकास्ट हुआ उस कम्युनिटी रेडियो से, दैट सिंपली इज मॉनिटरिंग। सो लुक्स एट बोथ प्रोसेस, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स। उसके बाद दूसरी हमारे एक चीज आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है कि हम डेटा कलेक्शन एट डिस्क्रीट पॉइंट्स टू इन्वेस्टिगेट अ प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, कि वो दिन में 3 बार कम्युनिटी रेडियो पे मैसेज तो आ गया, लेकिन क्या उस मैसेज को कम्युनिटी ने उसी तरह से समझा जिस तरह से आप समझाना चाहते थे, और क्या उस मैसेज के बेस पर वो एक्शन हुआ जो आप एक्शन कराना चाहते थे। ये इवैल्यूएशन है। सो यू कंपेयर वेरिएबल्स एंड मेजर्स देम, क्या क्या, और उससे ये भी बताएगा कि अगर वो नहीं हुआ तो क्या बैरियर सामने आए, या वो बैरियर कम हुए क्या, और क्या चेंजेस, क्या बदलाव आए। तो यहाँ पर हम आउटकम और इम्पैक्ट दोनों को देख रहे हैं। सो मॉनिटरिंग में हम क्या कहते हैं कि इंडिकेटर होता है। कोई भी चीज जब आप कहते हैं कि उसको नापना है, अगर किसी की हाइट नापनी है तो हाइट नापने के लिए यू यूज अ टेप, a measuring scale. Similarly, monitoring के लिए you have to have a scale, and we call that scale indicators. So these are the data points used to measure how close a program is
to its desired path and how much things are changing. For example, number of communities reached by mid-media activities. आपने एक स्ट्रीट प्ले किया था तो कितने लोगों ने कम्युनिटी के उसको अटेंड किया. सिंपल सा ये एक इंडिकेटर है कि कितने लोगों तक वो पहुंचा. और एक दूसरा शब्द हम जो यूज करते हैं वो है हमारे मॉनिटरिंग के टारगेट्स. सो दे प्रोवाइड क्लैरिटी अबाउट व्हाट विल बी अचीव्ड एंड बाय द प्रोजेक्ट. यानी हम अपने प्रोजेक्ट से करना क्या चाहते हैं, हमारे जो टारगेट डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल 60% ऑफ प्रोग्राम कम्युनिटीज शुड बी रीच्ड बाय योर कम्युनिकेशन. तो ये हमारा मॉनिटरिंग का टारगेट हो गया. कुछ एग्जांपल्स हैं मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स की. कम्युनिकेशन प्लान एक्टिविटी को लेके एक एग्जांपल है कि भाई एक ऐसा वेब पोर्टल हो जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो कम्युनिटीज के बीच में. अब हमारा मॉनिटरिंग क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये पोर्टल जो है ये क्या लोगों तक सेलेक्ट टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रहा है, और वो कैसे पता लगेगा. नंबर ऑफ पर्संस हु एक्सेस द पोर्टल इन 1 month, या नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज रिसीव्ड एंड रिप्लाईज गिवन इन सो एंड सो पीरियड. एक दूसरी एग्जांपल, मास मीडिया कैंपेन आपने कम्युनिटी रेडियो पे किया तो आपको रिकॉल पता करना है. अब ये रिकॉल क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ पर्संस हु कुड रिकॉल अ मैसेज आउट ऑफ टोटल सैंपल. यानी कितने लोगों को आपका मैसेज याद था, सिर्फ इतना आप पता कर रहे हैं. मास मीडिया कैंपेन ऑन कम्युनिटी रेडियो हैज बीन द कम्युनिटी रिस्पांस टू कॉल फॉर एक्शन. तो जो आपने उनसे काम करने को कहा उसमें से कितने लोगों ने नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड ऑन द गिवन नंबर इन सो मेनी वीक्स और मंथ्स एंड नंबर ऑफ पर्संस रजिस्टर्ड फॉर द सर्विस फ्रॉम द रेडियो कैचमेंट एरिया वर्सेस द टोटल पॉपुलेशन रीच. तो ये अलग अलग चीज की ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप एक खास बात देखिए कि सारे इंडिकेटर्स में आप एक कॉमन चीज देखी होगी कि हम नंबर्स, प्रोपोर्शंस, इस तरह की चीजों में बात कर रहे हैं. और इंडिकेटर शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, मेजरेबल. तो इस सेशन में हमने बात की मॉनिटरिंग जो है वो ट्रैक करता है और मेजर करता है किस चीज को, प्रोग्राम की एक्टिविटीज को, व्हेन, व्हाट, हाउ मेनी. इवैल्यूएशन ट्रैक करता है किस चीज को, इफेक्ट ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटीज को, कि यानी जो काम आपने करने का सोचा था वो काम हुआ कैसा, रिजल्ट्स क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या आया. और इंडिकेटर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इफ ट्रेनिंग ऑन ट्रैक फॉर मॉनिटरिंग, जैसे अगर आप इसी ट्रेनिंग की आप बात करें तो क्या आपकी ट्रेनिंग ऑन ट्रैक चल रही है मॉनिटरिंग के लिए. इफ ट्रेनिंग इज ऑन द डिजायर्ड ट्रैक ऑफ, ये उदाहरण ये है कि जैसे ट्रेन जो है वो पटरी पर चल रही है, ये मॉनिटरिंग हो गई. और ट्रेन जो है, ये ट्रेन है, वो ट्रेनिंग हो गया गलती से, सॉरी. और ट्रेन जो है वो उस डिजायर्ड ट्रैक पे चल रही है जिस पे उसे जाना था, या उसे जाना तो था उत्तर प्रदेश और जा रही है उड़ीसा वाले ट्रैक पे. ये आपका इवैल्यूएशन हो गया. ओके. एंड देन फाइनली टारगेट्स प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन व्हाट विल बी अचीव. टारगेट्स ये क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं कि अचीव क्या किया जाएगा. तो ये हमारा चौथा सेशन में हमने ये 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन सेशंस के ऊपर अपना फीडबैक दे दें चैट बॉक्स में. आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स, और जो वही लिंक है उस लिंक पे इन 3 लास्ट क्वेश्चंस को टिक करके और अब आप उसको कंप्लीट फॉर्म करके सबमिट कर दीजिए. इनफैक्ट आप सेशन, डॉक्टर सुषमा, लेट्स ओपन द सेशन फॉर क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव अ 10-minute thing, so people can also simultaneously keep asking questions. Yes. Firstly, I would like to thank Sir Nisar and Varsha ma'am from EID for such insightful presentation on social and behavioral change. Thank you so much for your patience and as well as explaining thoroughly in detail. Now, since we have come to the end of the session, I would like our Executive Director, Major General Manoj Kumar Bindal, to kindly address the valedictory session. Thank you. We welcome our Executive Director, Major General Manoj Kumar Bindal, sir. Sir has just joined us. We request sir to kindly address the participants. I was hearing all the feedback sessions and I went through all the chats, question answers. They were really, really interesting, and that spoke how much interest the participants are taking into such an important issue. That itself shows the importance of this whole training module that we are developing. So this itself shows
this training module which is being made between UNICEF and NIDM, 1 hour module, which we will be then conducting sometimes standalone, sometimes with our other programs. But the whole idea of these 3 regional workshops is to capture the input to improve the module. You should, everyone who's giving the comments and thereafter also the email IDs which have been given to you, your intervention is required. How to increase the utility of this module, that it only contains things which are required to be told. All unrelated items are left out. After this, what we are planning is we are going to add 30 minutes module for various types of disasters. So like for earthquake, if we talk about, so we'll have another 30 minutes of module added to this, which will be in conjunction with this module when we are teaching or conducting any training program on earthquake related areas or area which is prone to landslide. We will have a 30-minute training module on SBCC only for landslides, which will be as an annexure to this and a toolkit for also. So that is the whole plan, and that is why all these modules are being prepared. So I once again thank the panelists and the speakers who were really engaged, the participants throughout, and the style of teaching was and training was really good. I am quite impressed, and I also learned a number of tricks just by listening to them. So thank you so much, and thanks to all the participants once again. Thanks to the panelists, and thanks to the organizers both from UNICEF and from NIDM for this webinar. We'll look forward to seeing you more in the next webinar. And there was a request from someone from the Northeast that they want to do webinars in their state and all. You can just write to NIDM. We will have it conducted wherever you want it to be conducted. We have no issues. We have got enough number of licenses and the wherewithal, and our decision cycle is making cycle is very, very short. So with that, I will again thanks everyone. Thank you. Thank you, sir, for addressing the session. Now, I would like to start with vote of thanks. So we have come to the very end of the session of social and behavioral and communication train. Initially, the webinar started with the inaugural address by Siddharth Shrestha from C4D, UNICEF. He spoke about the importance of communication, and then we started with our presentations, which were addressed by Nisar sir and Varsha ma'am. First of all, they spoke about the socio-ecological model, its definition, its understanding. Varsha ma'am gave a very vivid example about Dharavi, Mumbai, regarding its advocacy, local mobilization, IPC and BBC. Then, as the presentation continued, we also understood the importance of social ecology. Nisar sir, he made the session very interactive. He made sure that the participants, their voices were heard by giving various examples of a frog being in a boiling pot of water, etc. He also spoke about disaster management cycle, about community engagement, importance and value of community engagement, and as well as cited various examples like Kerala flood, risk-informed planning, key importance of risk information and planning, identification, communication channel, IPC, and in the end, differentiating between monitoring and evaluation. This webinar would have not been complete, or it would not be possible without the support of Dr. Sushma ma'am from NIDM, as well as Dr. Elizabeth from CIPARD, who are the backbone of the entire webinar. And it would have also not been possible without our key speakers. So I would like to thank each and every people who are joined and who are like with the webinar. And we cannot forget the participants, because they have been so patient with us and so cooperative
So I would like to thank all the participants as well as all the people who were involved with the webinar. And hopefully we will get to work with people as well as to conduct more webinar and have a more interactive session. Thank you so much. Thank you, Aradhna. I think we should be thanking our executive director once again, because it was Sir who was insisting on, having SBCC as an important tool, as an important component to be integrated into our other modules. So, now in a way it looks complete. The other modules, they would eventually look complete once this SBCC gets introduced. And it was Sir's initiative that we as faculty members from NIM are taking ahead or pursuing it. So hopefully it will be into our different sectors. So thanks to you, sir, and to all the participants. Once again, I would just like to inform, if you have any requests for hosting webinars, please write to our executive, addressing it to your mails or letters to our executive director with a request for tentative month or time, as well as the kind of topic you would want us to host the webinars, because that way it will be easy for the faculties to take up webinars. As we myself and Aradhna, we both thank the speakers. I think Nisar sir and Varsha madam, the elegance with which you speak, I wish to learn that. I wish to imbibe it. It's beautiful. We the content. So there's a lot that we have learned. Thank you, both of you. And we look forward to working together on the module and refining it further. Aradhna, thank you for being really cooperative. Even in my absence, you've handled it. And above all, it's Elizabeth, madam. Thank you so much, ma'am, for agreeing to host it in a very short time also. And we look forward to hosting more programs together. Thank you all. Be safe. Thank you. Thank you so much, ma'am. So finally, I am going to end the webinar. Thank you all.